Dear students, a very warm welcome in today's video lesson. In this video, I will continue with second chapter of history, that is New Kings and Kingdoms. Till now, you have learned about the different dynasties which emerged in the mid 8th century. And you also learned that how the taxes were collected to run the administration. In this video, I am going to explain you about the prashastis and the land grants. As you all know that prashastis are a special kind of inscriptions meaning in praise of. And whose praise in these prashastis were written? Obviously, not in your or mine praise. They were written in praise of a ruler. Who used to write that? Brahmins or the poets in the court of that particular ruler used to write that. Okay, and it was not necessary that whatever is written in prashasti will be definitely true. Okay, and what the rulers wanted themselves to be depicted as means brave and victorious warriors, like that, all that is written in the prashastis which were composed by the brahmins or the poet of that particular king, as I have told you earlier. Okay, let's look at one prashasti that is written in praise of Nagabhatta. But before that, let me remind you that in your previous class you have you have read about a prashasti which was written in praise of a Gupta ruler, Samudragupta. In first chapter of this class as well, you have read a prashasti which was written in praise of Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, if you remember. Here you can look here what is written in the prashasti that is describing the exploit of Nagabhatta. Who was Nagabhatta? He was a Pratihara king. And what the prashasti is depicting about him? The prashasti is telling that the king of Andhra, Sandhva present day Sindh, you can say, Vidarbha, that is part of Maharashtra, and Kalinga, part of Orissa. You must have heard about Kalinga war, after which the Ashoka left all his weapons. He became a follower of non-violence after Kalinga war. And here what is written, fell before him even as he was a prince. तो क्या बता रही है ये प्रशस्ति जो नागा भट्टा की प्रेज में लिखी हुई है कि आंध्रा, सिंध, विदर्भ और कलिंगा के जो किंग है वो झुक गए, गिर गए किसके सामने? नागा भट्टा, जो कि हिमसेल्फ वॉज ओनली अ प्रिंस। और तारीफ करते हुए नागा भट्टा की लिखा हुआ है, ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्धा, द रूलर ऑफ कन्नौज, ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्ता, पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा, पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, किरत, फॉरेस्ट पीपल्स, तुरुष्का यानी टर्क्स, वत्सा, मत्स्या, बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ ये क्या डिस्क्राइब कर रही है प्रशस्ति कि नागा भट्टा जो एक प्रतिहारा किंग है, उसने इन सब पर, चाहे वो कन्नौज का रूलर है, बंगाल का रूलर है, गुजरात, मालवा और टर्क्स पे, वत्स और मत्स्य जो कि नॉर्थ इंडिया के इम्पॉर्टेंट किंगडम्स थे, इन सब पर उसने विक्ट्री गेन की है। As I have told you, who used to write these prashastis? Either a Brahmin or the poet of the king. अब जब तारीफ की जाएगी किंग की, तो ऑब्वियसली इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो वो देगा ही ना, खुश होकर के। तो इन रिटर्न किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो जो किंग है वो खुश होकर के क्या देता था ब्राह्मण्स को, जिन्होंने प्रशस्ति लिखी है किंग के बारे में? लैंड देता था। और जितनी लैंड दी जा रही है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दोज कॉपर प्लेट्स, ओके, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड।
आज के टाइम पे भी आप देखते हो स्टैम्प पेपर पे मेंशन किया हुआ होता है ना कि दिस लैंड बिलोंग टू दिस पर्सन, बट अर्लियर दीज कॉपर प्लेट्स वर यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड. Here in small letters you can see what is written. This is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 9th century. Written partially in Sanskrit and partially in Tamil. तो यानी ये तमिल के किसी रूलर की जो है वो कॉपर प्लेट्स पे मेंशन किया हुआ है कि वो किससे लैंड ग्रांट कर रहा है, कौन से ब्राह्मण को दे रहा है, कितना अमाउंट ऑफ लैंड उसे जो है वो दे रहा है. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that it is an authentic document. आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ होता है कि किसी के भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लैंड से रिलेटेड, यानी वहाँ पे एक ऑथेंटिक पेपर होता है जिस पे मेंशन होता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो पहले टाइम पे भी वो सील्स जो हैं राजा की वो निशानी होती थी, बताता था कि हाँ भाई ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है. चलिए लेट्स कम टू अनदर पेज. Was the only land given as a grant to Brahmins or to whomsoever the king is giving? No. Then what else was given along with the land? तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. This is part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas. Cholas rulers, those who were ruling over Tamil Nadu in 8th century. तो उन्होंने एक ब्राह्मण को लैंड ग्रांट किया और उसके साथ साथ क्लियरली मेंशन है इन कॉपर प्लेट्स पे कि उस लैंड में और क्या क्या है. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. यानी जितनी लैंड उस पर्सन को ब्राह्मण को दी जा रही है उसकी बाउंड्री को डिमार्क कर दिया गया है. कैसे? वहाँ पे अर्थन एम्बैंकमेंट्स बना दी गई हैं, जिसे मुंडेर बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो मिट्टी की मुंडेर बना दी गई है, या थॉर्नी बुशेस जो हैं उसके चारों तरफ प्लांट कर दी गई हैं, जो इंडिकेट करता है कि दैट मच लैंड इज ग्रांटेड टू दैट ब्राह्मण. दिस इज वॉट द लैंड कंटेन्स. अब लैंड पे है क्या क्या? क्या खाली लैंड है? खाली नहीं है. जो लैंड दी गई है वो क्या क्या बियर कर रही है? फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स. अरे भाई पता चल रहा है कि छोटा सा पीस नहीं है लैंड का, बहुत बड़ी लैंड दी गई है जहाँ फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, वाटर लैंड है, गार्डन्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, पॉस्चर लैंड्स, अ विलेज भी आ रहा है, एंट हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्ट लेडन लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव एंड डीप लेक्स. ओह माय गॉड, इमेजिन करो कि कितनी बड़ी लैंड जो है वो ग्रांट की गई होगी. एक पूरा विलेज आ रहा है, ऑर्चर्ड्स आ रहे हैं, गार्डन्स आ रहे हैं, ओपन स्पेस भी है, एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड भी है, कैनल्स भी हैं, सो मेनी थिंग्स. ठीक है, तो इतना बड़ा जो लैंड है वो ग्रांट किया गया है और उसे क्लियरली इंडिकेट भी किया गया है कि व्हाट along with that land is granted to that particular person. Then next what is written? He who receives the land can collect taxes from it. ओहो, यहाँ पे ये जो ग्रेनरीज हैं, जो फ्रूट ऑर्चार्ड्स हैं और जो विलेज की लैंड है, जो पॉस्चर लैंड है, वहाँ से वो पर्सन जो है टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी भी जो है वो उसे मिल गई है. Okay, he can collect the taxes imposed by judicial officer as fines, the tax on betel leaves, that on woven cloth as well as on vehicles. Oh my God, यानी कि वहाँ से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उस पर भी टैक्स मिलेगा, क्लोथ वीव किया जा रहा है लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा, तो उस पर भी वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है. बीटल लीव्स वहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही हैं तो उस पर भी टैक्स जो है
कौन कलेक्ट करेगा, जो भी टैक्स मिलेगा वो फायदा किसको पहुंचने वाला है, उस पर्सन को जिसे वो लैंड का ऑनर किंग ने बना दिया। He can build large rooms with the upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and the embankments are built. बस एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई वाटर जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए और एम्बैंकमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली बिल्ट होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से कैनल्स कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकता है, ठीक है, वेल्स डिग कर सकता है, घर बना सकता है, अपर स्टोरीज क्रिएट कर सकता है उन पे। तो ऑल दैट इज ग्रांटेड अलोंग विद द लैंड। ओके, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा, प्रशस्ति पढ़ ली यहाँ पे नागा भट्टा की प्रेज में। फिर अगर वो प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मण को किंग खुश होकर के क्या क्या दे देता है लैंड के साथ, वो हमने देख लिया। अब हम एक डिफरेंट चीज, अनयूजुअल थिंग पढ़ती हैं अबाउट द 12th सेंचुरी, जो कि एक संस्कृत पोएम है। किसके बारे में है? दैट इज अबाउट द रूलर्स ऑफ कश्मीर and it was composed by a poet named Kalhan. Okay, usually what happens ki whatever Brahmins or poets are written in Prashastis, they are basically in praise of that king or ruler. लेकिन जो कल्हन ने लिखा है, ओके, ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। हमने पहले पढ़ा है कि जो प्रशस्तिज बताती हैं, दैट डजंट मीन दैट ऑल दैट इज ट्रू, बट कल्हन ने जो लिखा है, कल्हन ने जो रूलर है उसे क्रिटिसाइज भी किया है, उस टाइम के पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज भी किया है, यानी उसने जो ट्रू अकाउंट है वो प्रेजेंट किया है। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers where they are doing some mistake that is not justify, उसे criticize किया है किंग को और साथ ही साथ उसकी बनाई हुई पॉलिसीज को भी। That's all for today's video lesson. I hope you must have understood this topic, that is Prashastis and land grants. Thanks for watching.